Hello students, so in today's video I will start the next chapter, that is statistical description of data. So this chapter is not new for you. Whatever we have done in all the chapter of our syllabus of statistics, वो सारी बातें repeat होगी कि how we use different type of data, what are the class limit of the data, what is the height scale, what type of diagram we have used, how to represent data. All these things we are going to again study in this chapter. So first I will explain what is the statistics. So statistics means it is the data. Okay, so from where we can collect data, all these things we will see in this. So statistics have 4 steps. So first step is the collection of data. Second step, tabulation. Third step, analysis. Third step is analysis, and fourth step is interpretation, means result. Fourth step is interpretation, means result. These 4 steps is nothing but it is the definition of statistics. What is statistics? It is collection of data. First we have to collect data, then we have to tabulate data, then we have to analyze and interpretation. So all these, whatever we have learned about analysis for the purpose of analysis. Whatever we have learned in the concept of statistics. Okay, so but how to collect data and tabulation, I will explain you. That also you have seen, but again I will explain you. So first step comes in front of us, how to collect the data. So data collection is of 2 types. First is primary data, and second is secondary data. Okay, primary data means if you are doing any project or any assignment and if you are going to collect data by yourself. Okay, अगर आप खुद डेटा कलेक्ट करके लाते हो किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, then at that time that type of data is known as primary data, because your data is collected by you. But if you are not collecting data, you are collecting data from some other sources, from some government sources, or it may include private sources from some hospital, okay, from internet. So all this type of data is known as secondary type of data, जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा है और हम उसका यूज कर रहे हैं. दैट्स वाई उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा. बट अगर हम कोई डेटा खुद से कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा. सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. After that, next point is come tabulation. So for tabulation, data can be हम क्या करते हैं उसको, we can tabulate data in many ways. So in this concept we have seen first raw type data, raw distribution, then frequency distribution for group and ungrouped data. You all are familiar with what is group data, what is ungrouped data. Okay, so this comes under tabulation. वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को टेबल फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. मे बी इट मे बी अ रॉ डेटा और अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन. Third type is analysis. When you are doing analysis, you have to use some tools. For example, you can find standard deviation, coefficient of variation, correlation coefficient. All these things comes under analysis. And after doing analysis, whatever you got, that will be your interpretation. आपको जो आंसर आया, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की, that will be the interpretation. So this much simple is the statistics. So all these 4 steps are very important. Okay, so if we go in statistics, then first thing, statistics is not a individual, it comes under mathematics. So it is known as the branch of mathematics. It is not mathematics, it is the branch of mathematics. Now this statistics is first, if we go in the origin of statistics, then there is so much confusion, बिकॉज देर इज एक कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से ये डिराइव हुआ. तो ये इसके अलग अलग, फर्स्ट लैटिन वर्ड से स्टेटस मिला, ठीक है, फिर इटालियन वर्ड से वो थोड़ा और डिराइव हो गया, इस तरीके से फिर फ्रेंच वर्ड मिला, ओके, फिर एक जर्मन वर्ड मिला. तो यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि ये लैटिन वर्ड है या इटालियन वर्ड है. तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है कि ये वर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स ही कहाँ से डिराइव हुआ. ये फर्स्ट स्टेटस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, राइट. देन स्टैटिस्टिक वर्ड अगर हम देखेंगे तो वो जर्मन वर्ड है. फिर इसमें फ्रेंच वर्ड भी यूज़ हुआ है, इसमें इटालियन वर्ड भी यूज़ हुआ है. सो उसके ओरिजिन के बारे में हम क्लियर नहीं बोल सकते कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है.
बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. आफ्टर दैट अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इट हैज़ वाइड यूजेज इन कॉमर्स. सो दैट यू आर ऑल फेमिलियर ये बात से कि मैं कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, राइट. सो दिस सब्जेक्ट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू साइंस फैकल्टी, but we are learning statistics in commerce, so it has its wide usage in this. That's why we are learning this right now. So in economics there is one subject, it is known as econometrics. In that we can see index number, time series, and there are some charts are also used which belongs to statistics. तो ये सारा जितना भी आएगा ये सब स्टैटिस्टिक्स का है. तो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है इकोनॉमेट्रिक्स. सो ये एक एग्जांपल है कि ये स्टैटिस्टिक्स कितना ज़्यादा यूजफुल है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन बिजनेस मैनेजमेंट में यूज़ में आएगा. तो कॉमर्स के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा. सो ये सारे इसके वाइड यूजेज है जो एप्लीकेशन के अंदर आता है, ठीक है. सो इसके एप्लीकेशंस में हमने देख लिया कि बिजनेस मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स जो है कॉमर्स में यूज होता है, ठीक है. फिर उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, ओके, कि मतलब उतना अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट नहीं होता है. ऑल दी वैल्यूज जो भी हम स्टैटिस्टिक्स से डिराइव करते हैं वो सारी जो होती है वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा में आएगा प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. दैट आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. ओके. सो प्राइमरी सोर्स में क्या क्या आता है, कैसे कैसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग इंटरव्यू मेथड, मीन्स आप पर्सनल जाके इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एक क्वेश्चनर बना के मेल कर सकते हो पर्टिकुलर एरिया के लोगों को. मतलब आपको सीए लोगों से कुछ टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप एक 10 क्वेश्चन का क्वेश्चनर बना के उन लोगों को सेंड कर सकते हो. तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा और आपको जिनसे आंसर फीडबैक चाहिए आप उन्हीं को ये भेज सकते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे मेल क्वेश्चनर मेथड यूज़ हो सकता है. या फिर आप क्वेश्चनर, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चनर लेके घूमते हैं, वो हमसे उसको फिलअप करवा के खुद ही तब का तब फीडबैक लेते हैं. तो वो भी एक तरीका है, ठीक है. या फिर आप फ़ोन करके उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो. तो ये सारे मेथड्स आते हैं जो भी हम खुद करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके मेथड से. तो ये सारे आते हैं प्राइमरी. सेकेंडरी सोर्स में मैंने आपको बताया कि आप गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेज हैं या इंटरनेट से या प्राइवेट है तो वहाँ से जब डेटा कलेक्ट करते हो, हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो सारा डेटा आता है सेकेंडरी. तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, जैसे इंटरनेशनल सोर्सेज में आ जाएगा WHO, ILO, IMF. यहाँ से अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो या किसी भी जगह से जहाँ पे ऑलरेडी डेटा बना हुआ है और आप वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हो तो वो सारा डेटा होता है सेकेंडरी डेटा, जिसे आपने नहीं कलेक्ट करके रखा है, ठीक है. उसके बाद जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं या तो प्राइमरी सोर्स से करते हैं या फिर सेकेंडरी सोर्स से करते हैं, स्क्रूटिनी होती है डेटा की. स्क्रूटिनी वर्ड आपने सुना होगा. स्क्रूटिनी मीन्स चेक, वेरिफिकेशन. डेटा जो हमने लिया है वो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए लिया है उसके अकॉर्डिंगली वो सही है या नहीं, इसलिए उसकी वेरिफिकेशन होता है, उसका चेकिंग होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्रूटिनी. उसके बाद व्हाट इज डेंसिटी, समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इट इज एरिया अपॉन पॉपुलेशन, ठीक है. सो डेंसिटी पता चल जाती. आफ्टर दैट मेन पॉइंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या क्या आ जाएगा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, जैसे थेरी टेक्स्ट में आप देखते हो वैसे भी हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं थ्योरेटिकली. पैराग्राफ्स में हम उसको लिख के भी बता सकते हैं डेटा को. सेकेंड टाइप इज टेबुलर. टेबुलर मीन्स आइदर वी कैन यूज अ फ्रीक्वेंसी टेबल, रॉ डेटा भी टेबल में शो कर सकते हैं, ग्रुप डेटा भी शो कर सकते हैं, तो वो टेबुलर हो जाएगा. पर यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी आ सकते हैं टेबल में, तो मैं आपको वो बता देती हूँ. तो हम सब जानते हैं कि जब एक कंप्यूटर की जो टेबल आपने देखी होगी, आपने एक्सेल वगैरह में ऐसा काम करते हो तो वहाँ पे कुछ वर्डिंग्स यूज होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ. कैप्शन. कैप्शन क्या होता है, ये जो कॉलम है इसकी जो भी हेडिंग हमें डालनी है ना तो वहाँ पे कैप्शन वर्ड आता है. मेन कॉलम की या सब कॉलम्स की जो भी हेडिंग हम डालेंगे उसको हम बोलते हैं कैप्शन. ओके. स्टब, एक वर्ड आएगा स्टब. यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोज की हेडिंग डाल सकते हैं. ये जो रो है इसकी हेडिंग डालेंगे उसको बोलते हैं स्टब. अब ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट जिसको मैंने अंदर बॉक्स बनाया, अभी एक टेबल बनी है, ये इतना जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी. अंदर का जो हेडिंग्स को छोड़ दी तो जितना बॉक्स है उसको बोलते हैं बॉडी, और ये पूरी टेबल को बोलते हैं हेड बॉक्स.
हेड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, कैप्शन, स्टब, हेड बॉक्स एंड बॉडी। सो इस तरीके से टेबल में ये नेम यूज में आते हैं, जो हम कंप्यूटर पे अगर यूज करते हैं तो ये सारे नेम आपको बताऊंगे, ठीक है। स्टब इज द लेफ्ट पार्ट में होता है, इट इज द हेडिंग ऑफ एनी रो. After that, diagrammatically we can represent also the data. So line diagram, vertical histogram, and vertical bar diagram, horizontal bar diagram, all these things are used. अब बार डायग्राम्स और आगे एक पॉइंट आने वाला है हिस्टोग्राम, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। बार डायग्राम्स इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और हिस्टोग्राम कंटिन्यूस होता है। हिस्टोग्राम में जो शेप शुरू होता है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें स्पेस नहीं मिलेगा आपको, गैप नहीं मिलेगा, तो ये कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है। और ये डिस्क्रीट के लिए होता है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके के बार डायग्राम होते हैं। लाइन डायग्राम जब हम पॉइंट्स को एक एक्स और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स आते हैं उनको ज्वाइन करके एक लाइन आती है। आप ये ग्राफ देख सकते हो, आपकी सबकी बुक में मिलेगा आपको। तो इस तरीके के हमने ड्रॉ भी किए हैं, इसको लाइन डायग्राम बोलते हैं। ये वर्टिकल बार डायग्राम है। आपको हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरीके का भी बार डायग्राम होता है, ये बुक में नहीं दिया है बट ऐसा भी बार डायग्राम होता है। तो इन दोनों के जो यूजेस हैं बार डायग्राम के, वो थोड़ा सा अलग है कि वर्टिकल कब यूज करना है, हॉरिजॉन्टल कब यूज करना है। आपको वो नोट डाउन कर लेना है कि क्वांटिटेटिव डेटा है तो वर्टिकल बार डायग्राम यूज आएगा क्वांटिटेटिव डेटा के लिए, ये वर्टिकल बार डायग्राम। लेकिन अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज करेंगे। ये कौन सा है, वर्टिकल बार डायग्राम है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज होगा। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, यू ऑल नो, लाइक, डिसलाइक, परफॉर्मेंस, ये जो स्कोर आता है ये सब आता है क्वालिटी में, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। वैसे टाइप का डेटा है तो फिर हम उसको हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा पाई चार्ट हम 360 डिग्री पे पॉइंट्स निकाल के करते हैं। 10 तक के स्टूडेंट्स को भी ये आता है, ये इतना कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल के एक वेरिएबल होता है, उसके आगे जो वैल्यू होती है मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। बहुत इजी पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें आप फैमिलियर हो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या डिफरेंस है, आई विल एक्सप्लेन दैट। सो क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट, ये जो है ये ओवरलैपिंग नहीं होता है। ये जो होता है ये डिस्क्रीट होता है। मीन्स हम हर बार एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, क्लास लिमिट, बट जब हम डीप में जाते हैं उसका प्रॉपर मीनिंग देखेंगे तो ये डिस्क्रीट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी जो क्लास इंटरवल आती है 0 to 9, देन 10 to 19, देन 20 to 29, तो ये है क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, और ये है अपर क्लास लिमिट। बिकॉज डिस्क्रीट है, 9 के बाद 10 आया, कंटिन्यूस नहीं हुआ, थोड़ा डिस्क्रीट हो गया, इसकी वजह से ये है क्लास लिमिट। और क्लास बाउंड्री किसको बोलते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये ओवरलैपिंग है। 10 अगेन आ गया, 20 अगेन आ गया, 30 अगेन आएगा। सो ओवरलैपिंग क्लासेस है, इसको बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री, इसको बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्री एंड क्लास लिमिट। ये ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, ये ओवरलैपिंग होते हैं, ये प्रॉपर कंटिन्यूअस होते हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होते, राइट। सो अगर हम इस डिफरेंस को अगर बाय प्रूफ लिखना चाहे तो ये क्या होगा कि अगर आपको क्लास बाउंड्री चाहिए क्लास लिमिट से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री लानी है तो क्या करेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस करना पड़ेगा, जो हम करते हैं। या फिर जनरल फॉर्मूला इसका ऐसा है, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2। Why d/2? D is the difference. D is the difference. Which difference? This difference. 9 to 10. This difference is 1. So 1/2, 0.5. See, most of the cases 99% questions में 1 ही आया, because in your syllabus इतना ही है। But sometime अगर 2 का डिफरेंस आ गया उस केस में हमको -1 करना पड़ेगा। अगर 2 डिफरेंस है, 9 है और यहाँ 11 से शुरू हो रहा होता
तो हमको 11 होने की वजह से वहाँ पे 2 लेते, 2/2 1 आता, 1 माइनस करते, पर ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आया बिकॉज हमारे सारे क्वेश्चन में यहाँ का जो डिफरेंस है वो 1 ही आता है। इतना हमको रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है, इसलिए हमको हर बार 0.5 माइनस करो, मैंने आपको ये लर्न करवा दिया है, बट ऐसा रूल नहीं है, फॉर्मूला इज d/2। सो जनरल बातें ये मुझे याद रखनी है, बट हमको क्वेश्चंस में हमने मोस्टली ये यूज किया है, ठीक है। और अपर लिमिट के लिए, अपर क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करेंगे, अपर क्लास लिमिट में हम d/2 ऐड करेंगे। हम मतलब क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट में हम 0.5 ऐड करते हैं, तो प्रॉपर कंटिन्यूस बन जाता था, उसी को बाउंड्री बोलते हैं, और इनको लिमिट्स बोलते हैं जो प्रॉपरली कंटिन्यूस नहीं है। तो ये एक मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट graphically this type of data. So histogram, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ओगिव हम सबको पता है, ये हिस्टोग्राम से जस्ट लाइक बार डायग्राम, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम is used for the continuous type of data. See, there is no gap between any bar, but in bar diagram there is difference because that is used for the discrete data, that's why, ठीक है। This one is the frequency polygon. When you will plot frequency on x-axis, you will get such type of graph that is known as frequency polygon. In ogive we use in the partition value. So we all know that the intersection of two ogive gives median. So यहाँ पे दो ogive का intersection बताया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व्स कौन से टाइप के होते हैं, तो बेल शेप कर्व होता है सबसे मोस्ट पॉपुलर और फेमस, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। उसके अलावा जे शेप होता है और मिक्स्ड कर्व भी होते हैं। तो यहाँ पे हमको ये सारे कर्व भी देखने को मिलेंगे, ये बेल शेप, ये यू शेप, ये जे शेप, ये मिक्स्ड कर्व, ठीक है, जो कि टाइम सीरीज में यूज होता है। तो यहाँ पे इतने सारे शेप्स है। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर था। आप इसके ऑब्जेक्टिव्स एक बार पढ़ेंगे, थ्योरी अच्छे से लर्न करो, फिर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ो, आपको आंसर आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या पूरे 11th-12th स्टैंडर्ड में मेन स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करते वक्त जो भी नॉलेज आया उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी और थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा ये। थैंक यू।